Good morning, children. Hope you are fine and healthy. So, student, please raise your hand if you can hear me. Student, please raise your hand if you can hear me. Okay. So, today we are going to start a second lesson of English. Let's learn pranayama. So, before starting this chapter, you can see the slide of the what is pranayam. So what is pranayam? Pranayam क्या होता है? So you know about pranayam. So you have to starting this chapter, you have to know about pranayam. Pranayam is mainly a kriya exercise with air. The Sanskrit word pran means breathe or life force, while ayam means regulation or control. Okay, student? Pranayam is a scientific method of controlling the breath, leading to better health for both mind and body. Means that प्राणायाम क्या होता है? सांस का नियंत्रण होता है, विस्तारण करना होता है. इसके अभ्यास से, इसकी प्रैक्टिस से हम अपनी सांस की गति को कम कर सकते हैं. Got it, student? Okay. After that, the means of pranayam, we have to understood what is pranayam. प्राणायाम अब देखिए, आपको अभी इस समय क्या चल रहा है? कोविड कोरोना चल रहा है, पता है ना आपको? तो हम सबको क्या कहते हैं? यू शुड डू प्राणायाम डेली. व्हाई? बिकॉज डू प्राणायाम इट इनहांस आवर इम्यून सिस्टम. ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बढ़ा देता है. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज keep a pencil with you and write the name of your class. Okay, open your book, the page number 6. Okay student, so here the image of chakrasan. The name of this yoga is a chakrasan. Chakrasan, please write down this spelling on your book. The image is chakrasan. Chakrasan means circle pose. Circle pose. The person is looking like a circle. Okay, what is trend? Here the next image is Sarvansan. Sarvansan means serve means whole. Okay, so standing the support of shoulders, it is called Sarvangasana, means whole body asana. Okay, what student? Got it? Here the second image of Sarvangasana. Please note down on your book. And the third image is Halasana. You can see this image. The third image is Halasan. The spelling of this image, Halasana. Halasan. Okay, student. Halasan. It's like a shape of plow. Plow means क्या होता है? आपको पता है? हिंदी में plow को हम क्या बोलते हैं? हल. खेत में होता है ना हल जोतना, उसको हम क्या बोलते हैं? लो. तो इसको ये शेप इसकी तरह है, हल की तरह शेप है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हलासन. और नेक्स्ट इमेज इज ऊर्ध्वा मुखासन. ऊर्ध्वा मुखासन. Write down the spelling of this asan. Urdhvamukhasana.
Urdhva Mukhasan. Urdhva Mukhasan. It is looking like Urdhva. Urdhva means upward facing. आगे की तरफ फेस हो रहा है ना इसका upward facing. इसलिए इस आसन का नाम क्या है? Urdhva Mukhasan. Urdhva Mukhasan. आगे की तरफ मुंह होना. Okay, student. Got it? Okay. Now come to the lesson 2. Let's learn pranayam. I hope you understood the asan of this asan. Okay. Now here are the images of this asan. So I have told you about this asan. The first is Chakrasan. The second image is Sarvangasan, and the third image is Halasan, and the fourth image is Uddhasan. So, have you understood this asan? Okay. Can you name these yogasan? The first question raised here. Can you name these yogasan? I think you have write down this name. The means of yogasan. Yogasan means yogic pose. Yogasan means क्या होता है? Yogic pose. Which of these do you perform in the prayer assembly? आप अपनी prayer के समय prayer assembly के समय आप इसमें से कौन से आसन perform कर सकते हैं? कौन कौन से आसन? देखिए, एक आप कर सकते हैं चक्रासन और दूसरा आप कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं? हलासन. ओके. नाउ द थर्ड वन इज व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? जब आप ये योगासन परफॉर्म करेंगे तब उसके बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? This question I will discuss in the end of this session. Tomorrow you will do some asan and then I will ask you about in the next class how you feel when you do asan. Okay. Now before starting this chapter, first I will discuss first the word meaning of this chapter. Okay. Open the page number. Open the page number 11. Okay, student. Now open the page number 11. So here are the word meanings. So our first word meaning is pleasant. Pleasant means pleasing, enjoyable. Pleasing, enjoyable means सुहावना. Second, track. सर्कुलर पाथ फॉर रनर. दौड़ने का पार्ट. जब अभी आप पार्क में जाते हो आपने देखा है कि पार्क के चारों तरफ एक ट्रैक बना होता है जिसपे लोग दौड़ रहे होते हैं, है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स. नेक्स्ट, पोज. पोज the position in which someone stands for sit. मीन्स कहते हैं पोज मतलब क्या होती है? मुद्रा. The position in which someone stand. इसमें क्या होता है? someone क्या होता है? stand या तो खड़े होके करते हैं या बैठ के करते हैं. जैसे अभी हमने देखा ना मुद्रा देखी थी ना आपकी प्राणायाम की, हलासन की, है ना? नेक्स्ट, wonder. Wonder means to ask yourself questions or express a wish to know about something. Means जानने को उत्सुक होना. Next, curiosity. Curiosity means the desire to know about something. किसी के बारे में जानने की इच्छा होना, मतलब जिज्ञासा होना. ठीक है. Next is extension. Extension means the act of adding to something. Means क्या होता है? Act of adding to something मतलब विस्तार होना. विस्तार होना. Okay. Next one is reduce. Reduce means to make something less or smaller in size. Reduce का मतलब क्या होता है? To make something less, कम होना. Smaller in size. Quantity में या price में. Okay. कम करना. Preferably means in a way that is more attractive or more suitable. Next, seek. Seek means to ask for advice, help, approval, permission. Means मांगना. Ask to
ask for advice, किसी से advice लेना, किसी से help लेना, किसी परमिशन लेना, उसको हम क्या बोलेंगे? Calmly. Calmly means in a way that shows you are not excited, means nervous or upset, means शांति पूर्वक, calmly means आप क्या बैठे हो, बिल्कुल शांति बैठे हो, उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? calmly. Next, slightly. Slightly means a little, थोड़ा सा. Next, last, comfortably. Comfortably in a comfort way, easily. Easily means आराम से. Okay, students. Now move on now to your chapter. Open the page number 6. Now here are the images. I think you have to understood the images. Okay. Now move on now, page number 7. Okay, now page number 7. So let's learn about pranayam and its benefits. इस chapter में हम प्राणायाम के बारे में और उसके benefits के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? Okay. Shivam and Nitin were students of class 5th. Shivam और नितिन क्या थे? Students of class 5th. Class 5th के students थे. One day they got up early. एक दिन क्या हुए? They got up early. वो जल्दी उठे. Got up का मतलब क्या होता है? उठना. Early means जल्दी. It was a pleasant morning. Here the word pleasant means enjoyable. Underline this meaning, pleasant, enjoyable. They went to a park for a morning walk. वे कहाँ पर गए? पार्क में गए. किसके लिए? मॉर्निंग वॉक के लिए वो कहाँ गए? पार्क में गए. They saw many people in the park. उन्होंने क्या देखा? They saw many people in the park. पार्क में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा. Some of them were running on the track around the park. उनमें से कुछ क्या कर रहे थे? पार्क के अंदर जो चारों तरफ जो ट्रैक बना हुआ था उस पर क्या कर रहे थे? रनिंग कर रहे थे, मतलब दौड़ रहे थे. ट्रैक का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, a circular path for runners. So children were playing. बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. In the middle of the park. Middle means बीच में. In the middle of the park. पार्क के बीच में. Some people were sitting and making different poses. Some people were sitting. मतलब कुछ लोग वहां पर बैठे थे and making different poses. और क्या कर रहे थे? डिफरेंट पोज बना रहे थे. अभी आपको बताया था ना मैंने पोज का पॉइंट मीनिंग मुद्रा, मतलब डिफरेंट टाइप के वो क्या क्या कर रहे थे? मुद्रा बना रहे थे. Shivam wondered. Here the means of wonder means surprised. शिवम सरप्राइज हुआ. What they were doing? वे क्या कर रहे थे? Out of curiosity. Curiosity means जिज्ञासा से. Desire to know मतलब उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या कर रहे हैं. Both the friends went near them. दोनों जो दोस्त थे वे कहाँ गए? उनके पास गए. ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको ये पैराग्राफ? इस पैराग्राफ में क्या बताया गया? शिवम एंड नितिन वर two friends. One day they got up early and they went to a park and they saw many people in the park. Some people were running on the track and the children were playing and some people were sitting and making different poses. Okay, so Shivam wondered, suddenly Shivam wondered that some people making different poses. What is this? ये क्या है? Out of curiosity, they went near them. Curiosity से वो कहाँ गए? उनके पास. Okay, so now there was a yoga teacher. वहाँ पर क्या था? एक योगा टीचर. योगा टीचर ने जो योगा कराते हैं. Who was giving instructions. वो क्या दे रहे थे? Instructions दे रहे थे. Instructions. Okay. He said, उसने कहा, my dear friends, let's learn pranayam in today yoga class.
ओके, तो वहाँ पर जो योगा टीचर थे वो तो क्या दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. अंडरलाइन द वर्ड इंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन द मीनिंग्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस गिविंग ऑर्डर्स. नाउ ही सेड माय डियर फ्रेंड, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास. तो वो कह रहे थे कि माय डियर फ्रेंड्स, चलो मेरे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम, हम प्राणायाम सीखते हैं इन टूडेज योगा क्लास. आज की जो योगा क्लास चल रही है उसमें हम प्राणायाम सीखते हैं. सो नाउ सेड somebody asked, किसी ने पूछा, क्या पूछा, what is प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है. प्राणायाम क्या होता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना. प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है. फर्स्टली यू नो अबाउट द वर्ड प्राणायाम. प्राणायाम क्या होता है, यह एक संस्कृत वर्ड है. दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम संस्कृत, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राण प्लस आयाम. प्राण, प्राण मीन्स क्या होता है, प्राण का मतलब होता है breathe or life force, while ayam means regulation or control. So now come to the next page. Here the definition of pranayam. So what is pranayam? Pranayam is a control and extension of breathe. प्राणायाम क्या होता है, इज द कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, ओके, एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब विस्तार होना ऑफ ब्रीथ. ब्रीथ का मतलब आपको पता है, सांस लेना. तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम सांस का नियंत्रण एंड विस्तरण करना होता है. ओके स्टूडेंट, by practicing it, here the word practicing is doing it, by practicing it means, here the word it means pranayam. हम इसको जितनी हम इसको करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, we can reduce our breathing rate. हम अपनी जो reduce means कम करना, हम अपनी इस breathing rate को reduce कर सकते हैं. अब इधर कहने का मतलब क्या है, ब्रीथिंग रेट, जो हम सांस ले रहे हैं, अभी आप जैसे देखो, आप सांस ले रहे हो, उसको क्या कर सकते हैं, कई लोग देखा आपने सांस, कई लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कई लोग धीरे. तो हम प्राणायाम से ये प्रैक्टिस करना सीखेंगे, प्राणायाम से सीखेंगे कि हम अपनी ब्रीथिंग रेट को, जो हम सांस ले रहे हैं, उसको हम कम कैसे करें. Reduced breathing rate has a lot of benefits. जब हम अपने रिड्यूस करते हैं ब्रीथिंग रेट को, एज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. बेनिफिट्स मतलब लाभ होते हैं. इट स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. ओके, ये क्या कर देती है, हमारी हार्ट रेट को क्या कर देती है, स्लो कर देती है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है. एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और हमारी बॉडी और माइंड को क्या करती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है. हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. सो प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम क्या करती है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी. तो प्राणायाम क्या करती है, हमारी जो आयु होती है, हमारी जो लाइफ होती है, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, उसको क्या करती है, बढ़ाती है. तो आपको समझ गए होंगे कि प्राणायाम क्या है. प्राणायाम एक क्या है, एक सांस का नियंत्रण और विस्तरण है. प्राणायाम करके हम अपनी ब्रीथिंग रेट को हम रिड्यूस कर लेते हैं, जिससे हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. अब आपको पता चल गया होगा कि ये बेनिफिट्स मिलते हैं इससे हमको, तभी आपको ये पता है कि अभी जो फिलहाल जो कोरोना चल रहा है ना, जिसमें हम बोलते हैं सबको कि आप अपने घर पे रहें, है ना, अपने आप को सेफ रखें, है ना. तो इसलिए, और आपको अगर आप डेली प्राणायाम करेंगे, अगर डेली प्राणायाम करेंगे तो आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा. इम्यून सिस्टम बढ़ेगा आपका, इम्यून सिस्टम बढ़ने से आपके ऊपर इस डिसीज का इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही कम होगा. इसीलिए कहते हैं कि डू एक्सरसाइज डेली. Okay, you should do pranayam daily. Okay, in the next class I will ask you a student किस किसने प्राणायाम किया घर पे. ठीक है स्टूडेंट.
Now move on next paragraph. Pranayam should be done on an empty stomach. Empty stomach means without taking. मतलब आपका स्टोमच, आपका जो पेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। कभी भी जैसे आपने खाना खा लिया उसके बाद कभी भी प्राणायाम, योगास और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओके, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। और कब करना चाहिए? प्रेफरेबली मतलब क्या होता है कि सुटेबली, मोर सुटेबली, मतलब मेनली प्राणायाम कब करना चाहिए? मेनली प्राणायाम मॉर्निंग में करना चाहिए। You can also do it in the evening. आप ये इवनिंग में भी कर सकते हो, लेकिन बट there should be a gap of 4 hours after the last meal. लेकिन क्या होना चाहिए? आप जब भी प्राणायाम करोगे तो उसके बीच में 4 घंटों का गैप होना चाहिए। Should be a gap of 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। जैसे आपने लास्ट मील ली उसके बाद आपका 4 घंटे का गैप हुआ तो आप इवनिंग में आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपका 4 घंटे का गैप नहीं है, मतलब कहने का मतलब 4 घंटे का गैप क्यों है? 4 घंटे गैप होगा तभी आपका स्टोमच क्या होगा? खाली होगा। अगर स्टोमच भरा हुआ हो, अगर आपने ना 4 o'clock आपने तो आपने कुछ भी स्नैक्स ले लिया और है ना 6 o'clock आप एक्सरसाइज के लिए, आप प्राणायाम के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बीच में गैप कितना होना चाहिए? अगर आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो आपको 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और वैसे प्रेफरेबल क्या होना चाहिए? मॉर्निंग में। हमको क्या करना चाहिए? इसको प्राणायाम को मॉर्निंग में ही करना चाहिए। सो have you understood this? Okay. Shivam and Nitin got interested and joined the group. शिवम और नितिन क्या थे? गोट इंटरेस्टेड मतलब इसको देखने में, ये करने में क्या थे? इंटरेस्टेड थे, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। ज्वाइन द ग्रुप, क्या कर रहे थे? ग्रुप ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। मतलब क्या कर रहे थे कि ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, क्या? योगा टीचर की परमिशन लेकर क्या करना चाहते थे? ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे। Okay. The teacher started listing the steps of pranayam. So the teacher started. टीचर ने क्या स्टार्ट किया? लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। जब प्राणायाम हम शुरू करते हैं तो उससे पहले लिस्ट, मतलब वन बाय वन आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो उसके बारे में अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। Okay. When you go through this chapter, you have to better understand what is pranayam and what is yogas. Okay. Now, here the step one. Step one here. Sit calmly on a mat and close your eyes. सबसे पहले एक आपको मैट लेनी है, उसके ऊपर शांति से बैठना है और अपनी आंखों को बंद करना है। Now, step second, put left ankle on the right leg. Have you seen the image? देख रहे हैं आप? इमेज में देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है? रख रहा है अपना जो लेफ्ट एंकल है, किस पे रख रहा है? ऑन द राइट थाई। हियर यू कैन सी द इमेज द स्क्रीन। ओके, समझ आ गया आपको? सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है? आपको शांति से बैठना और अपनी आंखें बंद करनी है। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है? आपको अपना जो राइट थाई है, ठीक है, अपना जो लेफ्ट एंकल है इस पे रखना है, राइट थाइस पे रखना है। ओके, नाउ मूव ऑन द पेज नंबर 9। Here the step number 3. Okay. Step 3. Now put right ankle on the left thigh. अब आपको क्या करना है? जो राइट एंकल है आपका वो किस पे रखना है? आपको लेफ्ट थाई पे रखना है, ठीक है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। ये पोस्चर क्या कहलाता है? पद्मासन। पद्मासन, हियर द वर्ड पद्मासन मीन्स, आपको पता होगा पद्म मीन्स क्या होता है? कमल मीन्स लोटस एंड आसन मीन्स पोज। तो पद्मासन एक जो आसन बनता है वो किसकी तरह हो जाता है? लोटस की तरह ये आसन बन जाता है। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट? Okay, now we move on the next step. Okay, in the beginning you may find it slightly difficult to sit in this pose. अगर आप
शुरू करेंगे बैठना। अभी आप रोज जब आप बैठते हैं तब आप इस पोज में नहीं बैठते। अगर आप जैसे ही शुरुआत करते हैं इस पोज की तो आपके लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। ओके, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आप इसे सीख जाएंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ we move on the step number 4. So, the press your right nostril. Here the word nostril means you see your nose and here are two nostrils. Okay. So press your right nostril with your right hand thumb. You can see the image. Okay. And breathe in slowly from the left nostril. आपको क्या करना है, प्रेस करना है। क्या क्या प्रेस करना है, प्रेस करना है आपको। क्या कर, राइट नोस्ट्रल को आपको प्रेस करना है। और प्रेस किससे करना है, आपका जो राइट हैंड का जो थंब है उससे आपको क्या करना है, अपने राइट नोस्ट्रल को प्रेस करना है। एंड ब्रीथ इन स्लोली, आपको धीरे 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 आपको ब्रीथ लेनी है, सांस लेनी है फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको धीरे धीरे क्या लेनी है, सांस लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। आपको जब तक सांस लेनी है, जब तक आपके जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरह से फिल ना हो जाए, सांस से भर ना जाए, तब तक आपको क्या करनी है, सांस लेनी है। ओके, वापिस से मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। प्रेस योर राइट नोस्ट्रल, आपका जो राइट नोस्ट्रल है उसको प्रेस करना है। किससे प्रेस करना है, राइट हैंड थंब से प्रेस करना है। ठीक है, राइट हैंड थंब से आपने राइट नोस्ट्रल को प्रेस कर दिया। और आपको क्या करना है, जो लेफ्ट नोस्ट्रल है जो आपका ओपन है उससे आपको ब्रीथ लेनी है। ओके, स्लोली स्लोली आपको क्या करनी है, उससे ब्रीथ लेनी है। सो डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ये आपको जब तक करना है जब तक कि आपके आपके जो लंग्स है, जिसको हम हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, उसके अंदर उसमें हवा जब तक नहीं बढ़ जाती तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूरक। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस। इस प्रोसेस को हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम ब्रीद इन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को पूरक। देखो आप सारा दिन हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल। इनहेल का मतलब सांस लेना, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, ब्रीथ इन हो रहा है, पूरक। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूरक। जिसमें ब्रीथ इन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पूरक। नाउ we move on the step 5. Now hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you can comfortably can. अब अपनी जो आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांस है, उसको क्या करना है, 5 से 10 सेकंड रोकना है। आप सांस ले रहे थे लेफ्ट नोस्ट्रल से, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, रोकना है। ओनली एज लॉन्ग एज यू कैन कंफर्टेबली कैन। ओके, आपको जब तक आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, मतलब कंफर्टेबली हो जाएंगे उस तक ही लेनी है सांस। ऐसे नहीं कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, आप फिर भी अपनी ब्रीथ को आपने क्या कर रखा है, रोक के रखा है। नहीं, आपको जब तक कंफर्टेबली रखे, आसानी से लगे, तब तक आप अपनी ब्रीथ को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कुंभक। देखो जब सबसे पहले हम ब्रीथ इन कर रहे थे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पूरक। नाउ जब हम ब्रीथ को होल्ड करेंगे, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीथ इन किया, उसको फिर हमने 5 to 10 सेकेंड होल्ड किया। जब हम होल्ड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कुंभक। ओके स्टूडेंट, हैव यू गॉट इट। नाउ मूव ऑन योर next page. Open the page number 10. Step 6. Now release the thumb and close the left nostril with your ring finger. अब आपको क्या करना है, now release the thumb, जो इस thumb से राइट थंब से आपने प्रेस किया था ना, अब आपको उसको क्या करना है, रिलीज करना है, धीरे धीरे हटाना है। And close the left nostril with your ring finger. And you understood this ring finger? Here are the picture on the screen. You can see here are, this is a ring finger. Okay, so now release the thumb, हमको release करना है, and close the left nostril with your ring finger. अब ring finger से आपको जो left जो nostril है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, देन ब्रीथ आउट।
अब प्रोसेस क्या होगी, अभी तक तो प्रोसेस से ब्रीथ इन किया था, फिर हमने ब्रीथ को होल्ड किया था। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ब्रीथ आउट। अभी जो प्रोसेस क्या हो रही है, ब्रीथ आउट। अब आपको धीरे 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 सांस को छोड़ना है, स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रल। और जो ब्रीथ आउट करनी है वो अब किससे करनी है आपको, राइट नोस्ट्रल से। ओके, so this process of breathing out is called breathing. जो प्रोसेस, जो ब्रीथिंग आउट वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग. So here are the three process of pranayam. The first is purak, second is kumbhak, and third is breathing. In the first process of Purak, the process of Purak is breathing in, जिसमें हमने breathe in किया था, and the second process of holding breath मतलब हमने breath को hold किया था, is called Kumbhak, and the third process is Rechak. Have you understood this? In the Rechak process, you can breathe out. Okay, so now the step seven. Now breathe in from the right nostril. अब आपको क्या करना है, breathe in लेना है, इसे breathe in करना है right nostril से. Okay, first you concentrate on the first three step. First is Purak, second is Kumbhak, and third is Rechak. Now you relax. Now you breathe. Now again you breathe in from the right nostril. अब आपको right nostril से क्या करना है, breathe in करना है. Then hold your breath again. अब आपको क्या करना है, अपनी breath को again hold करना है. And the next step is now press the right nostril with thumb and breathe out from the left nostril. अब आपको वो अब जो प्रोसेस करनी है, अब आपने होल्ड करी ब्रीथ वापस, अब क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है, जैसे हमने पहले किया था, अब उसका अपोजिट. अब नाउ क्या करना है, प्रेस करना है आपको राइट नोस्ट्रल विद थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल. ओके, now you may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 12 rounds. अब आपको क्या करना है, इसके 5 राउंड्स लेने हैं और अपने जो राउंड्स को डे बाय डे आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है. सो have you understood this step? And once again from the starting and once again yes, I once again explaining you. So first of all, first you sit calmly on your mat. Second, put left ankle on the right thigh, and the third step, now put right ankle on the left thigh. Okay, this posture is called Padmasana. Now the step 4, press your right nostril with your right hand palm and breathe in slowly from the left nostril. Okay, do this till your lungs are full. This process of breathing in is called Pura. Next process, hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you can comfortably can. This process of holding breath is called Kumbha. Now, moving on next page. Now, next step, now releasing the thumb and close the left nostril with your ring finger. Then breathe out slowly through your right nostril. This process of breathing out is called Recha. Okay, have you understood this? So now time is running out. So okay, I'm uh, ending this chapter now. So I am asking a question from you. So if you can understood this chapter, so you can raise your hand. Yes, student. I'm asking a question from you. Yes. Pranav. Yes, student. Please raise your hand. Shubham. Shubham, please unmute yourself. First of all, student, please join the meeting with official name. Okay. Rename daily. Yes, beta. Noorpreet, please unmute yourself. Hello, Noor. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Have you understood this chapter? Yes, ma'am. What is pranayama?
Yes, ma'am. Okay, now what is a pranayam? You tell me about the pranayam. Pranayam is control and extensions of the breath. Okay, okay. Now, here the word of pleasant morning. Means of pleasant, beta. Yes, ma'am. Means of pleasant. Now move on the next student, Nikshit Pleasing, Gaur. enjoyable. Nikshit Gaur, please unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Ma'am, what is the meaning of nostril? नोस्टल देखो बेटा, आपकी जो आपके नोज है फेस में है ना, इसके आपके देख रहे हैं 2 छिद्र होते हैं, उसको हम इंग्लिश में नोस्टल बोलते हैं. ओके स्टूडेंट. Okay, ma'am. ओके. नाउ हैव यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. Okay. Now the next student is Ankusha. Ankusha? No. Hello, ma'am. Good Yes. morning. Good morning, beta. Yes. Ankusha. Ma'am, Yes, beta. Yes, ask. ma'am, what is the meaning of What is the meaning? What is the meaning of preferably? preferably? बेटा preferably का मतलब क्या होता है? preferably का मतलब होता है कि जो आप